أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ بركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ سورۃ الزمر کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خطاکار بندوں سے، گنہگار بندوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ جو مشرف و اسلام ہوئے، ایمان لائے، تو اسلام میں آنے کے بعد انہیں اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کی یاد ستانے لگی، اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہونے لگے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، یہ مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ندامت ہو، احساس ندامت کے ساتھ تم اگر اس کے حضور گڑ گڑاؤ گے، اس سے دعا کرو گے، مناجات کرو گے، سرگوشی کرو گے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔
भाइयों, इंसान फितरतन खताकार वाक़ हुआ है। हर इंसान से गलती होती है और हर इंसान से गुनाह होता है। ये सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम का खासा है कि अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम गुनाहों से मासूम हुआ करते हैं। अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के अलावा जितने इंसान हैं वो लाख कोशिश करें गुनाहों से बचने की, उनका बशरी तकाजा है, इंसान होने का तकाजा है कि कभी ना कभी गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है। गलती ये नहीं कि गलती हो जाए, गलती ये है कि गलती हो और उस पर तौबा ना हो। गलती ये नहीं कि गुनाह हो जाए, गलती ये है कि गुनाह हो और इंसान उससे रुजू ना करे, गुनाह पर गुनाह करता जाए। अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर तुम लोग गुनाह करके तौबा नहीं करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम को लाएगा जो गुनाह करेगी और तौबा करेगी और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करेगा। हदीस का मतलब क्या है? हदीस गुनाह करने की दावत नहीं दे रही है। हदीस गुनाह करने की दावत नहीं दे रही। गुनाह तो हो ही जाएगा, इंसान लाख एहतियात करे, कभी ना कभी हो जाता है। गुनाह जब हो जाए तो गुनाह पर तौबा करने की दावत दे रही हदीस। और हदीस ये बता रही है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार की अदा अल्लाह को बेहद पसंद है। बंदा जब गुनाह करता है, गुनाह करके एहसास नदामत के साथ रोता है, तड़पता है, गिड़गिड़ाता है, तो उस वक्त उसकी आंख से निकलने वाला एक एक आंसू भी मोती होता है। अल्लाह ताला के नजदीक एहसास नदामत से निकलने वाला एक एक आंसू भी मोती की कीमत रखता है और एहसास नदामत से निकलने वाले एक एक आंसू के अंदर वो तासीर होती है कि बड़े से बड़े गुनाह के धब्बे को भी वो धुल के रख देता है। तौबा व इस्तिग़फ़ार की अदा अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। तौबा व इस्तिग़फ़ार की इबादत अल्लाह ताला को बेहद पसंद है, इसलिए कि उससे अल्लाह ताला की शान गफ़्फ़ारी का ज़ुहूर होता है। बंदा जब गुनाह करके तौबा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, नादिम होता है और अपने खताकार होने का, गुनहगार होने का इकरार और एतराफ करता है, रब्बुल आलमीन की शान गफ़्फ़ारी का उस वक्त ज़ुहूर होता है। उसकी रहमत जोश में आती है और बंदों के गुनाहों को माफ करने लगती है। वह इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, अगरचे के बंदों के गुनाह समंदर के झाग और समंदर के कफ के बराबर क्यों ना हो। बंदे की तौबा से रब को कितनी खुशी होती है। इस खुशी को एक तमसील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील के जरिए से समझाया है कि एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। सहरा जहां ना कहीं पानी होता है, ना कहीं असबाबे जिंदगी होते हैं। एक शख्स अपनी ऊंट पर सफर कर रहा था और उसी ऊंट पर उसका पानी भी था, उसकी ग़िज़ा भी थी। एक जगह उसने थोड़ी देर के लिए आराम किया कि उससे उसकी सवारी खो गई। उसकी सवारी खो गई। आइन सहरा में उसकी सवारी उससे खो गई, जिस पर उसका पानी था, जिस पर उसकी ग़िज़ा थी। अब वो शख्स सहरा में ना आगे बढ़ सकता है, इसलिए कि सहरा में चलना हर कसो नाकस की हिम्मत की बात नहीं होती। और फिर प्यास लगे तो पिएगा कहां से कि सहरा है, पानी नहीं। भूख लगे तो खाएगा क्या कि उसके पास कोई ग़िज़ा नहीं और सहरा में ग़िज़ाई चीजें होती भी नहीं। वो मायूस हो गया, सवारी के गुम होने पर मायूस हो गया, जिंदगी से मायूस हो गया और जिंदगी से मायूस होकर एक दरख्त के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि उसकी सवारी उसके पास आके खड़ी हुई है। उसकी सवारी उसके पास आके खड़ी हुई है, उसका ऊंट उसके पास खुद ब खुद आ गया है। उसको इतनी खुशी हुई, जिंदगी से मायूसी के बाद फिर गोया जिंदगी मिल गई। उसको इतनी खुशी हुई, उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, परवरदिगारा तेरा शुक्र है, मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। क्या मतलब? इतनी ज्यादा खुशी उसको हुई और इस कदर खुश हुआ उसे ये होश ना रहे कि उसकी जबान से क्या जुमला निकल रहा है। वो शुक्राने के तौर पे कहना चाह रहा था कि परवरदिगारा तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। और उसकी जबान से निकला फर्ते मसरत में खुशी की इंतहा में ये निकला कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करके तौबा करता है, रब को इतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी के इस शख्स को जो जिंदगी से मायूस हो चुका था और फिर से सवारी मिलने के बाद जिंदगी की किरण जब नजर आई तो ये जिस कदर खुश हुआ था उसे ये तक खबर न थी कि जबान से क्या निकल रहा है। अल्लाह ताला को बंदे की तौबा से इस कदर खुशी होती है। गुनाह दो किस्म के होते हैं, एक को सगीरा गुनाह कहते हैं और एक को कबीरा गुनाह कहते हैं। अहले इल्म ने सगीरा और कबीरा में फर्क करते हुए बताया कि हर वो गुनाह जिस पर किताबों सुन्नत में किसी अजाब की वईद आई हो या जिसके करने वाले पे अल्लाह के गजब और उसकी लानत और उसकी फटकार की वईद सुनाई गई हो, वो कबीरा होता है, और उसके सिवा जो भी गुनाह है वो सगीरा होते हैं। सगीरा गुनाह ये अज खुद माफ होते रहते हैं। इंसान नमाज पढ़ता है, सगीरा गुनाह नमाजों से माफ होते हैं। इंसान कोई भी नेकी करता है, वो नेकियों से सगीरा गुनाह खुद ब खुद माफ होते रहते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह जो बड़े गुनाह होते हैं, जैसे सबअल मुबिकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क है, सूद का खाना है, मैदान जंग से पीठ फेर कर भागना है, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, लोगों साथ हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने कहा कि वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, ये साथ हलाक कर देने वाले गुनाह क्या है? आपने कहा अश्शिर्कु बिल्लाह, शिर्क, व सहर, जादू, व कत्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, नाहक किसी का कत्ल करना, व अक्लुर रिबा, सूद का खाना, व अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना, व तवल्ली यौम ज़हफ, जंग के दिन पीठ फेर कर भागना, व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुग़ाफ़िलातिल मुअमिनात, और भोली भाली मोमिन औरतों पर बहतान लगाना, उनकी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों में भी इन 7 गुनाहों को और कबीरा करार दिया। तो जो कबीरा गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह तो खुद ब खुद माफ होते रहते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह के लिए तौबा जरूरी होती है। कुरान मजीद ने कहा इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ऐ लोगों, जिन कबीरा गुनाहों से तुम्हें मना किया जा रहा है उनसे बचोगे, परहेज करोगे, तुम्हारे छोटे गुनाहों को हम खुद ब खुद माफ करते जाएंगे। तो भाइयों, मालूम हुआ कबीरा गुनाह जब भी होता है, बड़ा गुनाह जब भी होता है, इंसान को फौरन तौबा करनी चाहिए, फौरन अल्लाह की जानिब रुजू करना चाहिए, फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करना चाहिए। कबीरा गुनाह से जो तौबा होती है कैसे होती है? कबीरा गुनाह, कोई भी कबीरा गुनाह हो, वो चोरी हो, वो जिना हो, वो डाका जनी हो, वो सूद खोरी हो, कोई भी कबीरा गुनाह हो, उससे तौबा करने का जाबिता है। लोग समझते हैं तौबा यह है कि जबान से कह दिया जाए तौबा तौबा और तौबा हो गई। नहीं, तौबा करने का एक तरीका है, तौबा करने के उसूल और ज़वाबित हैं। हमारी तौबा उन उसूल और ज़वाबित की रोशनी में होना चाहिए। लिहाजा किसी भी कबीरा गुनाह से तौबा करने का पहला उसूल यह है कि इंसान उस गुनाह को छोड़े, उस गुनाह को छोड़े। ये तौबा नहीं कि गुनाह करते भी रहे और फिर तौबा भी होती रहे, गुनाह करते भी रहे और तौबा भी होती रहे। तौबा नहीं, तौबे की पहली शर्त यह कि इंसान गुनाह छोड़े। चोर चोरी से तौबा करना है, पहले वो गुनाह छोड़ने का फैसला करे कि मैं गुनाह छोड़ रहा हूं, फिर तौबा करे। जानी जिना से तौबा कर रहा है, पहले गुनाह छोड़ने का फैसला करे और फिर तौबा करे, और उसके बाद इंसान नादिम हो, उसके अंदर एहसास नदामत हो। गुनाह छोड़ने के बाद जो गुनाह हो चुका है उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, उसको याद कर के रोया करे, कैसी गलती मुझसे हो गई, कितना बड़ा गुनाह मुझसे हो गया। नादिम हो, नदामत हो। और नदामत के बाद तीसरा जाबिता यह है अल अज़्म अला अल्ला यऊद, कि आइंदा फिर से गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा हो। तौबा तो हो रही है जबान से और दिल में इरादा यह है कि मौका आए तो फिर करेंगे। ये तौबा नहीं, ये तौबे का मजाक है। तौबे में 3 शर्तें होनी चाहिए। तौबा छोड़ना, फिर जो गलती हुई उसको छोड़ना, फिर गलती पे नादिम होना, शर्मिंदा होना, और फिर ये पुख्ता इरादा कि आइंदा नहीं करेंगे। इन शराइत के साथ जो तौबा होती है वही तौबा अल्लाह के नजदीक कबूल होती है।
हाँ, किसी ने इन तीनों शराइत के साथ तौबा की, इरादा था, पुख्ता इरादा था, आइंदा नहीं करेंगे, 10-20 साल बाद फिर कभी ऐसी गलती इंसानी तकाजे के तहत हो गई, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन तौबा के वक्त ही ये इरादा हो आइंदा फिर करेंगे, ये तौबा नहीं है, तौबा का मजाक हो जाएगा। और अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से अगर है तो अहले इल्म ने एक और ज़ाबिते का इजाफा किया, एक और उसूल के हुकूकुल इबाद में कोताही पर तौबे की एक शक्ल, इन 3 शराइत के साथ साथ एक और शक्ल ये है कि हक को हकदार को तक लौटाए। किसी की जमीन हड़प कर ली है, अब उससे तौबा कर रहे हैं, ये तौबा नहीं अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने फलां की जमीन हड़प कर ली है, जमीन वापस करने का नाम तो नहीं ले रहे और मस्जिद में आके तौबा कर रहे हैं, मजाक है, खिलवाड़ है ये। तौबा हो, तौबा का तरीका ये है जमीन पहले वापस करें, जमीन वापस करें, जमीन ही नहीं जिसका जो हक लिया है उसका हक वापस करे और वापस करके तौबा करे, वो सच्ची तौबा है। हक को हकदार तक ना लौटाया जाए और जबानी तौबा की जाए, ऐसी तौबा इंदल्लाह कबूल ना होगी, मकबूल ना होगी। हत्ता के अहले इल्म ने यहां तक कहा है कि अगर किसी की गीबत कर दी थी, किसी की गीबत कर दी थी तो यहां भी चाहिए कि उसके सामने जाकर उससे खुद माजिरत करे इंसान कि भाई माफ कर दो, मैंने आपकी गीबत कर दी है। लेकिन अगर आपको ये अंदेशा हो कि अगर मैं जाके बताऊंगा फला शख्स को कि मैंने आपकी गीबत की है, मुझे माफ कर दो, वो जो है माफ करने के बजाय, खुश होने के बजाय मजीद मुझसे बदजन हो जाएगा, माफ नहीं करेगा। अहले इल्म कहते हैं ऐसी सूरत में उसे बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला से माफी मांग ले। और जिस मजलिस में जिन लोगों के सामने गीबत की है, उसी मजलिस में उन्हीं लोगों के सामने मौका आने पर उस शख्स की किसी अच्छाई और खूबी का जिक्र कर दे, वो इंशाअल्लाह ताला उससे तदारुक हो जाएगा, तलाफी हो जाएगी। तो भाइयों, तौबा इस तरह हुआ करती है। तौबा करने वाले बंदे अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। और तौबा कैसी होती है, आप हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को पढ़ो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहद नबवी में ऐसे वाक़ियात मिलते हैं जिनमें से हर एक वाक़ियात तौबा व इनाबत इल्लाह में अपनी मिसाल आप है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, ज़ोहर का वक्त है, एक साहब आए और आगे कहने लगे, या रसूल अल्लाह इन्नी आलश्तु इम्राअतन फी अक़सल मदीना व इन्नी असब्तु मिनहा मा दून अन अमस्सहा। कहा अल्लाह के नबी बहुत बड़ा गुनाह कराया हूं, बहुत बड़ा खताकार आपके सामने खड़ा है, बहुत बड़ी गलती कराया हूं। कहा क्या किया? कहा मदीने के किनारे एक खातून के साथ मैंने गलतकारी कर ली। हाँ अल्लाह के नबी, मैंने बड़ा काम तो नहीं किया, बड़ा गुनाह तो नहीं किया, लेकिन बोसो किनारे जैसे कुछ काम मैंने कर लिया। अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए, मुझे पाक कीजिए। जोहर की नमाज का वक्त आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर उठ खड़े हुए, बड़ी जमात के सामने कहा, अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए। भाइयों देखो, नदामत इसको कहते हैं, पशेमानी इसको कहते हैं, शर्मिंदगी इसको कहते हैं। गलती हुई वहां जहां कोई देखने वाला नहीं, तन्हाई में गलती हुई जहां अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला नहीं था, और गलती करने के बाद ऐसे नादिम हुए हैं, ऐसे शर्मिंदा हुए हैं, एहसास नदामत से ऐसे तड़प रहे हैं। भरी मजलिस में जहां सैकड़ों की तादाद में सहाबा है, भली मजलिस में आके अपने गुनहगार होने का, खताकार होने का इकरार कर रहे हैं। इससे सच्ची नदामत क्या हो सकती है, इससे सच्ची शर्मिंदगी क्या हो सकती है? उन्होंने ये सोचा नहीं कि सहाबा हैं, मेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, कुछ नहीं सोचा, बस वो गुनाह से पाक होना चाह रहे थे। अल्लाह के नबी ने देखा कि इन्हें सजा देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि सजा का मकसद क्या होता है? सजा का मकसद सामने वाले को गुनाह से रोकना। यहां सजा के बगैर वो नदामत हासिल है, यहां सजा के बगैर वो पशेमानी हासिल है, यहां सजा के बगैर वो शख्स शर्मिंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा हाँ पढ़ी है। जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। भाइयों, गैर मामूली वाकया है। तन्हाई में जहां कोई देखने वाला नहीं, वहां गलती हो गई इंसान होने के नाते। लेकिन कैसे थे सुभान अल्लाह उस जमाने के लोग, गलती होने के फौरन बाद एहसास नदामत से तड़प उठते थे
اور اللہ اکبر، یہ جو امرہ غامدیہ ہیں، یہ جو امرہ غامدیہ ہیں جن کا واقعہ کتب حدیث میں ہر کتاب میں مروی ہے، اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں یہ اسلامی تاریخ نہیں، پوری انسانی تاریخ کا یہ واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ پوری انسانی تاریخ میں ایسی مثال آپ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ انسان تھی یہ امرہ غامدیہ، ایک خاتون قبیلہ غامد کی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھی، لیکن احساس ندامت سے تڑپ اٹھی، احساس ندامت سے تڑپ اٹھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کر لیا، مجھے پاک کیجئے۔ 4 مرتبہ اعتراف کیا، 3 مرتبہ انہوں نے اعتراف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے رہے، اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرتبہ اقرار کرنا پڑتا ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا تو کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، لگتا ہے آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں، لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز اسلمی کو لوٹایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ خبر تھی کہ ماعز اسلمی کو زنا پر کیا سزا دی گئی تھی، انہیں معلوم تھا کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا تھا، اس لیے کہ اسلام نے شادی شدہ شخص، مرد اور عورت زنا کرتے ہیں ان کی سزا رجم ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کو سزا کیا ملنے والی ہے، انہیں خبر تھی کہ پتھروں سے مار مار کر ختم کیا جائے گا، لیکن عذاب جہنم کا خوف، آخرت کی رسوائی کا خوف ایسا غالب تھا، دنیا کی اس تکلیف کو برداشت کرنا منظور کر لیا۔ 4تھی مرتبہ کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے پاک کیجئے، میں بڑی بدکار ہوں، میں نے گناہ کر لیا۔ جب 4 مرتبہ اقرار کر چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم تمہیں رجم نہیں کریں گے، جاؤ ولادت کے بعد آنا، بچے کی ولادت کے بعد آنا۔ گئیں، ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں۔ غور کرو، اللہ کے نبی نے بلایا نہیں انہیں، وہ از خود ولادت کے بعد اپنے بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ آ کے کہا، اللہ کے نبی، یہ دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کیجئے اپنے گناہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم ابھی تمہیں سزا نہیں دیں گے، تمہیں سزا دیں گے کہ تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، جاؤ مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد آنا۔ واپس ہوئی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو اس حال میں لے کر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، بچہ روٹی کھا رہا تھا، اور یہاں بھی اللہ کے نبی بلائے نہیں، واز خود آئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا، ایک صحابی کی کفالت اور پرورش میں دے دیا، اور حکم دیا کہ انہیں جو ہے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ بھائی اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ احساس ندامت، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کے سلسلے میں یہ واقعہ پوری انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، پوری انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ کیوں بھائیو؟ انسان کے اندر ممکن ہے احساس ندامت ہوتا ہے، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی خاتون تھی، ایک تو حمل کی مدت 9 مہینے ہوتی ہے، 9 مہینوں تک وہ احساس ندامت سے تڑپتی رہی، پھر مدت رضاعت 2 سال ہوتی ہے، ہم فرض کر لیں انہوں نے 1 ہی سال دودھ پلایا ہوگا، وہ 1 سال، یعنی 2 سال تک اپنے کیے ہوئے گناہ پر احساس ندامت سے تڑپتی رہی۔ 2 سال تک وہ گناہ کا احساس انہیں تڑپاتا رہا، نہیں معلوم کتنے آنسو انہوں نے بہائے، کتنی بے چین رہی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ انہیں بلانے کی بھی ضرورت نہیں پیش کر رہی ہے، انہیں بلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ از خود آ رہی ہیں، از خود آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا معاشرہ ہے جہاں ایسا معاشرہ ہو، نہ کسی پولیس کے محکمے کی ضرورت ہے اور نہ کسی خفیہ محکمے کی ضرورت ہے، جہاں مجرم خدا کے حاکم کے سامنے اقرار کرتا ہو۔ یہ ماحول اور یہ معاشرہ اللہ کی قسم صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات سے ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ سزا دی گئی اور جب پتھر مارا گیا، ان کے خون کا چھینٹا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ لگ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبانی اس خاتون کے حق میں کوئی بری بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا،
खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, वल्लाहि लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति वल्ला वसिअतहुम। ए खालिद, उस खातून को बुरा मत कहो। क्यों? अल्लाह की कसम, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को मदीने के 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाए तो मदीने के 70 गुनहगारों की बख्शिश हो जाए। भाइयों, मदीने का गुनहगार जो मदीना जैसे मुकद्दस मुकाम पे रहकर अल्लाह की नाफरमानी करे, वो सरजमीन हरम है, वहां का गुनहगार बड़ा पापी होता है, बड़ा गुनहगार होता है। लेकिन यह ऐसी तौबा इस खातून ने की है, मदीने के 70 गुनहगारों में इस एक खातून की तौबा बांट दी जाए, 70 गुनाहों की भी बख्शिश हो जाए। तौबा और इस्तिग़फ़ार में यह वाक़या अपनी मिसाल आप है, जहां अल्लाह ताला की खशियत और खौफ इलाही, खशियत इलाही, जहन्नम के अज़ाब के खौफ के सिलसिले में अल्लाह की कसम, ये इंसानी तारीख में यह वाक़या अपनी मिसाल आप है। भाइयों, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियां पढ़ेंगे आपको ऐसे दसियों वाक़ियात मिलेंगे। बसा औक़ात तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए एक चीज जरूरी होती है, क्या है कि तहवील मकानी करना। एक शख्स बसा औक़ात होता है, नेक बनना चाहता है, मुत्तकी बनना चाहता है, तौबा करना चाहता है अपनी साबिक़ा बुरी जिंदगी से, मगर एक चीज रुकावट बनती है, माहौल, दोस्त अहबाब, वो मुआशरा। जिस माहौल, जिस बस्ती और जिन दोस्तों अहबाब के साथ रहकर उसने गुनाह किए, वो नेक बनना भी चाहे, वो दोस्तों अहबाब उसे नेक बनने नहीं देते, वो मुआशरा उसे नेक बनने नहीं देता, वो समाज और वो सोसाइटी उसे नेक बनने नहीं देती जहां रहकर उसने गुनाह किए हैं। लोग जब उसको मस्जिद आता हुआ देखेंगे ताने देंगे, अच्छा कल तक तूने इतने मर्डर किए और अब मस्जिद आने लगा है, अच्छा कल तक तू बहैसियत जानी मशहूर था अब अल्लाह अल्लाह करने लगा है। लोग ताने दिया करते हैं। इसीलिए हदीसों में यह आता है, बसा औकात किसी के हक में तौबा और इस्तिग़फ़ार का तकाजा यह होता है कि वो तहवील मकानी करे। तहवील मकानी का मतलब जगह चेंज करना, बस्ती बदलना, मोहल्ला बदलना, एरिया बदलना, कभी कभी तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए जरूरी हो जाता है। देखो, आपने वो मशहूर हदीस सुनी है, बनु इसराइल का एक शख्स जो 99 अफराद का कातिल था, 90 पर 9 अफराद को उसने कत्ल कर दिया। 99 अफराद के कत्ल के बाद एहसास नदामत उसके अंदर पैदा हुआ। उसने लोगों से पूछा, है कोई जो मुझे मेरे मसले का हल बता सके? लोगों ने कहा कि फलां जगह एक राहिब रहता है। राहिब किसे कहते हैं? इबादत गुजार को कहते हैं। कहा फलां राहिब के पास जाओ और उसके आगे अपना मसला रखो। गया और जाके उससे कहा कि भाई 99 अफराद का कातिल हूं मैं, क्या मेरे लिए तौबा है? मैं तौबा कर सकता हूं? उसने कहा 99 अफराद का कातिल नहीं, तुम्हारे लिए तौबा नहीं है। उसने तलवार निकाली, उसको भी कत्ल कर दिया और पूरे 100 अफराद का कातिल बन गया। मगर एहसास नदामत फिर उसे तड़पाने लगा, एहसास नदामत फिर उसे तड़पाने लगा। फिर उसने लोगों से पूछा, लोगों कोई सही आदमी बताओ जो मेरे मसले का हल बता सके। लोगों ने कहा फला मुकाम पे एक आलिम साहब रहते हैं, उनके पास जाओ। गया और जाके कहा कि देखो 100 अफराद का कातिल हूं मैं, तौबा करना चाह रहा हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा वमन यहूलु बैनका व बैन तौबा, कहा कि हाँ तौबा करो, तौबा करने का हक है तुम्हें। और किसे हक पहुंचता है कि वो तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान हाइल हो? तौबा कर ली उसने। देखो, पहला शख्स जिसने उससे कहा कि तेरे लिए तौबा नहीं है, वो आबिद था, आलिम नहीं था। वो बगैर इल्म के फतवा दिया इसलिए उसकी जान गई, बगैर इल्म के फतवा दिया इसलिए उसकी जान गई। और दूसरा शख्स आलिम था, इल्म ने उसकी जान बचाई, वरना अगर वो भी कहता नहीं है तो उसको भी मार दिया होता हो। इल्म ने उसकी जान बचाई। आलिम ने कहा कि हां तुम तौबा कर सकते हो, लेकिन आलिम ने उसको यह भी कहा कि तुम्हारी तौबे का तकाजा यह है कि तुम्हारा जो शहर है, तुम्हारी जो बस्ती है, अब वहां वापस जाना नहीं। फ़इन्नहा अर्ज़ु सू, इसलिए कि वो बुरी सरजमीन है तुम्हारे हक में। ऐसा करो फला शहर चले जाओ। अब तुम्हें चाहिए कि अपनी बाकी जिंदगी फला बस्ती में गुजारना, अपनी बाकी जिंदगी फला शहर में गुजारना जहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। देखो, तहवील मकानी की तालीम हदीसों में मिल रही है। जगह बदलना, माहौल बदलना, उससे क्या होगा? जब सोहबतें बदलेंगी, इंसान जो है, खुसूसन हमारे मुआशरे में गुंडा किस्म के लोग जो होते हैं, जो रोडीज़म में रहते हैं और बाद में तौबा करना चाहते हैं, उनके लिए तो अज़हद जरूरी होता है कि वो तहवील मकानी करें, वरना उसी जगह रह के वो तौबा करते हैं। पुरानी दुश्मनियां और पुराने दुश्मन उन्हें संभलने नहीं देते। तहवील मकानी बसा औकात जरूरी हो जाती है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 100 افراد کا قاتل جب اس سے کہا گیا کہ فلاں بستی چلے جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں اپنی باقی زندگی وہیں گزار دینا، یہ شخص اس بستی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ قبل اس کے کہ اس بستی کو پہنچے انتقال کر گیا، انتقال کا اس کی موت کا وقت آ گیا۔ فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 افراد کا قاتل ہے، اس کی روح ہم قبض کریں گے، ہم اللہ کے پاس اس کی روح کو لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے 100 افراد کا قاتل صحیح مگر نادم ہو کر آیا ہے، پشیمان ہو کر آیا ہے، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں آیا اور ان دونوں فرشتوں کی جماعت کے درمیان اس نے فیصلہ کیا کہ زمین ناپو، یہ اپنی پہلی بستی سے اگر قریب ہیں عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کرے، اور جس نیک لوگوں کی بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اگر اس سے زیادہ قریب ہے رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں۔ دیکھا گیا کہ وہ رحمت کی نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی، اس کے لیے سکڑ گئی اور ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا، تب رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ تو بھائیوں دیکھو یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ بندہ میری جانب اگر ایک ہاتھ ایک بالش آتا ہے میں اس کی جانب 2 بالش آتا ہوں، بندہ میری جانب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے میں اس کی جانب 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، بندہ اگر میری جانب چل کے آتا ہے میں اس کی جانب دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہی مطلب ہے۔ دیکھو 100 افراد کا قاتل صدق دل سے جب توبہ کر رہا ہے رب العالمین اس کے توبے کی کس قدر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کتنے بڑے ہم گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے بڑے ہم خطا کار کیوں نہ ہو، صدق دل سے توبہ کریں، احساس ندامت اپنے اندر پیدا کریں۔ احساس ندامت سے نکلنے والا ہر آنسو اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ گناہ کا بڑا سے بڑا دھبا بھی اس سے دھل جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔